السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہتے ہیں جس نے ہم تمام کو یہاں پر جمع ہو کے اس کے دین کی بات سننے کے لیے چن لیا ہے. اس کے بعد درود و کلام ہو ذات پر جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے تہ دل سے اہلاً و سہلاً آپ لوگوں کا استقبال کرتی ہوں. آج اس درس میں میرا عنوان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل طور پر قرآن مجید میں بہت زیادہ آپ کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم قرآن ہی سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کئی سوروں میں کم و بیش 25 سوروں میں آپ کا ذکر کیا ہے. 63 مرتبہ آپ کا ذکر کیا ہے. 63 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. جبکہ ہم نے تمام سے نبیوں سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ والا پکا والا عہد لیا تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے، جو کہ 5 اولو العزم پیغمبر ہے. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 5 نبیوں کو اولو العزم پیغمبروں میں سے چن لیا تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ہے، جو کہ نوح علیہ السلام پہلے تھے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن وہ پہلے نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے. رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. رسالت آگے ہے. رسالت یعنی شریعت جس کو عطا کی جاتی ہے نا، اس کو رسول بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو آیتیں رد کرتے ہوئے، جو کہ گورنمنٹ کچھ بھی آرڈر چینج کرتی رہتی ہے نا، اس طرح اپنی مثال کے طور پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آیتوں میں رد و بدل کرتے ہوئے جو شریعت بدل کے دے رہا تھا، ان تمام کو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول بنا کر بھیجتا ہے. نبی جو ہے آلریڈی جو شریعت رہتی ہے اس کے اوپر چلنے والے کو نبی کہتے ہیں. آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے. رسالت نبوت سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت ہم سے بہت قریب کا زمانہ ہے. آدم علیہ السلام سے بہت دور کا زمانہ ہے، لیکن ہم سے بہت
करीब का ज़माना है, कमोबेश 3,500-4,000 साल पहले पुराने का। हम मेरे ख्याल में मतलब इतना ज़्यादा पुराना नहीं कहते, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना था, हम उनसे बहुत ज़्यादा दूर का ज़माना था। फिर देखिए आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो है 10 कर्न यानी 1,000 साल तक लोग जो है तौहीद परस्त थे। एक भी मुशरिक नहीं था उसमें, एक अल्लाह को मानने वाले थे, हर एक अल्लाह की इबादत करते थे, उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करते थे। लेकिन जो कि शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था, उस वक्त पूरे के पूरे लोग 100% एक भी तौहीद परस्त नहीं था, पूरे बुत परस्ती शिर्क में मुब्तला थे। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, दुनिया की हालत भी वही थी जो कि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जो थी। इससे क्या पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जैसा लोग बुत परस्ती शिर्क में मुब्तला थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त भी लोग पूरे के पूरे एक भी तौहीद परस्त नहीं था। जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके कौम के तरफ मबूस पैदा किया, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था, तब कौम की हालत तो हालत थी, लेकिन खुद के घर में जो है अपने बाप खुद बुत परस्ती में मुब्तला थे, जो कि संतराश या संफरोश बोलते ना, बुतों को तराशने वाले, वही माहौल था घर में भी जो है, वही माहौल था। अल्लाह ताला एक तौहीद के इमाम को जो है शिर्क मुशरिकों के गढ़ में पैदा कर दिया। बहुत बड़ी आजमाइश, जबकि घर में पूरे के पूरे शिर्क करने वाले रहते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, अंबिया जो है बचपन से ही सलीमुल फितरत पर रहते, इसलिए संतराश और संफरोश यानी बेचता भी था और तराशता भी था। जब जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में आजर बल्कि नाम भी आता है, तो देखिए, और उसका पुरोहित था जो कि चढ़ावे चढ़ाते रहते ना बुतों के आगे, वो उसकी भी जिम्मेदारी इसके लिए इसके पास ही थी। और बुत परस्ती, बुत तराशने का जो राइट्स रहते, कॉपी राइट्स बोलते ना अपन, वो कॉपी राइट्स भी जो है आजर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप थे उन्हीं के पास थी। वो भी सबसे बड़ा मतलब बुत बनाने वाला जो था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ही थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत मतलब सब के सब यहूद नसारा मुसलमान सब बहुत सारी इज्जत देते हैं। क्यों बोले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा खुसूसियत ये थी कि आप अबुल अंबिया थे, यानी अंबियाओं के बाप का लक़ब दिया गया था आपको। अबुल आपके बाद जितने भी अंबिया आए आप ही के नस्ल से आए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए, उसके बाद उन्हीं की नस्ल से पूरे के पूरे अंबिया गुजरे थे, जो कि इसहाक अलैहिस्सलाम की, और दूसरी भी एक शाख है जो कि आपकी, जिसमें से शोएब अलैहिस्सलाम आए थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल हुआ था इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से। उसके बाद देखिए आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसी मतलब उस कौम में पैदा हुए जिस कौम की हालत ये थी कि वो 3 किस्म की शिर्क में मुब्तला थे। एक जो है सितारा परस्ती, यानी सितारों से उन लोगों की जिंदगियों पे असर पड़ता, ऐसा सोचते थे वो लोग। अब औलाद पे, फसलों पे, तकदीर पे, जो भी है अपने माश पे, उससे बदलाव, सितारा प्लैनेट सन मून सितारे, मतलब उन लोगों के बदलाव से हमारे जिंदगियों पे असर पड़ता था, ऐसा मानते थे वो लोग। सितारा परस्ती बोलते ना उसको। उसके बाद जो है बुत परस्ती, बुतों को
बुतों की इबादत करना। उसके बाद जो है आबा परस्ती। आबा परस्ती यानी अपने बड़ों की इबादत करते थे, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे से बुत परस्ती असल में स्टार्ट हुई थी, जो कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जो नेक लोग रहते थे उन लोगों के तस्वीर बना के उनके सामने अदब से खड़ाए जाते थे। उससे क्या होता था, शैतान जो है ऐसा बहका दिया कि उन लोगों के आगे इज्जत से खड़ेने के बजाय इज्जत से जो जो जैसा जैसा जमाना बदलता गया, मेरे दादा फिर मेरे मतलब मेरे बाप के दादा की मैं इबादत मतलब इज्जत करती थी, उसके बाद मेरी औलाद मेरे मेरे दादा उनके दादा, अब वैसा वैसा जो जो जमाना बदलता गया, नेक लोगों की तस्वीरें लाके उनके सामने इज्जत से खड़े थे, इज्जत से खड़े थे, खड़े खन्ना खन्ना क्या हो गया, उसकी इबादत में मुब्तला कर दिया शैतान। वहां से लेकर बुत परस्ती स्टार्ट हो गई। और दूसरी आबा परस्ती भी यही, मतलब बाप दादा को माना नहीं बोले तो वक्त के बादशाह को अपना माबूद बनाते थे वो लोग। इसके बाद जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई थी, वो आज के दौर के जमाने में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और भी खुसूसियत देखिए। एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी खुसूसियत ये थी कि आपको अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया था, जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 125 में फरमाता है, वत्तखज़ू इब्राहिम खलीला, हमने इब्राहिम को खलील बना लिया। खलील एक ऐसे दोस्त को बोलते हैं जिसका दूसरा कोई भी मैचिंग नहीं रहता उसका, वो सिर्फ अकेला दोस्त रहता। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा स्पेशल दोस्त रहता है कि उसकी प्लेस कोई भी नहीं ले सकते। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाए थे कि अय अबू बकर, मैं अगर अल्लाह को खलील ना बनाता तो मैं आपको खलील बनाता। यानी खलील अरबी में एक ऐसी हड्डी को बोलते हैं जो कि हलक में अटक जाए, जो ना निगल सकते ना बाहर जिसके बजाय जिंदगी ना गुजरे, उसको अरबी में खलील कहते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। देखिए कितनी बेहतरीन खुसूसियत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, बहुत ज्यादा बड़ा मर्तबा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पे थे। सबसे बुलंदी का जो दर्जा जो था 7वें आसमान पे थे, और बैतुल मामूर जो के उसको टेक लगा के बैठे हुए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और दूसरी खुसूसियत ये थी कि आपका नाम 25 सूरों में 63 टाइम्स अल्लाह ताला ने लिया है। और तीसरी खुसूसियत ये थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नौ इंसानियत के लिए इमाम बनाने वाला था, बल्कि बोला हमने आपको नौ इंसानियत के लिए इमाम बनाने वाले हैं, कहा अल्लाह। इससे बहुत ज्यादा आपकी खुसूसियत, सबसे बड़ी खुसूसियत अल्लाह ताला ने ये सर्टिफिकेट दे दिया है कि अल्लाह ताला जब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो जब इब्राहिम मुशरिक नहीं थे, बल्कि फरमाना अल्लाह। सबसे बड़ी सर्टिफिकेट आपके लिए क्या थी, इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। ये क्यों फरमाना, जो कि यहूद आप ही की नस्ल से थे। यहूद जो है इसहाक अलैहिस्सलाम के कौम को यहूद, याकूब अलैहिस्सलाम के कौम जो है बनी इसराइल कहते ना, वो यहूद थे। यहूद जो है, जो वो लोग ये मतलब अल्लाह के दीन को छोड़ के दूसरे दीन पे चल रहे ना, इसलिए अल्लाह ताला इब्राहिम की जो नस्ल, हम कहते रहते ना तुम लोग इब्राहिम मुशरिक नहीं थे, फिर तुम क्यों मुशरिक कर रहे, मतलब शिरक कर रहे। ये मतलब एक तरह का क्वेश्चन है कि यहूदियों को, इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं थे। बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इराक और ईरान के साहिल, कोस्टल एरिया बोलते हैं ना, जो साहिल पे, जो समंदर के साहिल के किनारे पे रहता, वो उस जगह पे एक शहर जो था, आज के मतलब आबादी के लिहाज से वो शहर का नाम जो है ऊर शहर, उसका नाम क्या था, ऊर
शहर का नाम, उस शहर में आपकी पैदाइश हुई थी। वहां का बादशाह जो था नमरूद था, यानी नेमरॉइड बोलते ना, नमरूद था। मतलब अब जैसा फिरौन बोलते हैं, इजिप्ट के बादशाहों को फिरौन बोलते हैं, खैसर और खैसरा रोम के बादशाहों का लक़ब था। इसी तरह वहां के बादशाह का लक़ब जो था नमरूद था। खानदानी, जैसा इंडिया में मुगल बोलते हैं वैसा खानदानी नाम नमरूद कहते हैं इसको। उसी तरह यहाँ का जो कैपिटल सिटी था बाबिल, यानी बैबिलोनिया, मेसोपोटामिया जो नाम से मशहूर है ना, इराक का कैपिटल सिटी बैबिलोनिया, वहां पर आपकी पैदाइश हुई, जो कि इंसानियत का गढ़ था। यहाँ से ही इंसानियत पैदा हुई थी। मतलब कदीम, बहुत ज्यादा पुरानी आबादी यहीं पर से शुरू हुई थी। कदीम पुरानी आबादी जो है इराक के जो शहर था बैबिलोनिया, कुरान में भी अल्लाह ताला इसका जिक्र फरमाता है बाबिल बोल के। नूह अलैहिस्सलाम भी यहीं कहीं पर से मतलब मबूस फरमाए थे जब। अब देखिए ये कौम की जो खराबी थी तीन तरीकों में थी, जैसा कि सितारा परस्ती, बुत परस्ती और आबा परस्ती। वक्त के बादशाहों को जो कि इबादत करते थे, और बुत परस्ती जो है मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ियों के बुत बनाते थे। कहीं भी सफर पे गए बोले तो वहाँ आटे के बुत बनाते थे। अगर आटा कम पड़ जाता तो वो आटे से रोटी बना के खा लेते थे। लकड़ी के बुत बनाते थे। अगर लकड़ी की भी जरूरत पड़ी, सर्दी हो, उससे मतलब वो लकड़ी को उसमें डाल के जला के उससे सेक लेते थे। वो लोगों का अकीदा जब उस वक्त ऐसा था। पूरे पूरे लोग शिर्क में मुब्तला थे, तौहीद परस्त एक भी ना था। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस कौम में पैदा किया, ऐसी हालत में पैदा किया कि आजर संतराश निकला। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बुतों से नफरत करते थे। बचपन से जब बाप बुत बनाते थे उसको तोड़ देते थे, नहीं तो उसके ऊपर बैठ जाते थे। उसको चलाना मतलब पूछते थे कि अगर वो जो बाप रहता था वो एक एक बुत एक एक तरीके से बना था, एक के कान बड़े रहते थे, एक के आंख बड़े रहते थे। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते थे कि अब्बा जान ये क्या बुत, मतलब ये कौन सा बुत है? तो ये सुनने वाला बुत है। मतलब सुनने वाला है तो फिर बोलता क्यों नहीं बोल के बोलते। मतलब बचपन से ही एक हिकमत वाले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बहुत ज्यादा हिकमत अल्लाह ताला ने उन्हें अता की थी कि फिर सुनता है तो ये बोलता क्यों नहीं, बल्कि आप सवाल करते थे अपने बाप से। इस तरह आप तौहीद के इमाम मुशरिकों के गढ़ में पैदा हो गए। ये तौहीद मतलब आपके ऐसी ऐसी आजमाइशें जो है अल्लाह ताला को ऐसी पसंद आ गई, जो कि क़यामत ता क़यामत रहती दुनिया तक के लिए आपकी कुर्बानियों का जिक्र करने के लिए, आपका जिक्र आने वालों के लिए बाकी रखूंगा बल्कि बोल रहा है अल्लाह ताला कुरान में। उसी तरह बाकी भी रख दिया अल्लाह अपने बंदों को। इसी तरह जिक्र बाकी रख देता है जो नेक बंदे रहते हैं उसके। अल्लाह ताला आपको जमीन और आसमान की तमाम मिल्कियत वाजे कर दी थी। जो भी हकीकत थी, चांद सूरज हर चीज के मतलब उसकी समझ बूझ अता कर दी थी अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। क्यों बोले तो अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़ा मिशन लेने वाला था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान को पुख्ता करने के लिए अल्लाह ताला इस तरह किया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते, कब बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो रहा था, आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो रहा था, आप बहुत मायूस हो जाते, बहुत गमगीन हो जाते, तो अल्लाह ताला क्या करते उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलजोई के लिए, आपका ईमान और पुख्ता करने के लिए क्या करते, मेराज के सफर पे लेके आते। उसी तरह अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी पूरी तमाम के तमाम
ہم نے آپ کو تمام ہدایت دے دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء 51 آیت میں فرما رہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کو سمجھ بوجھ بخش دی تھی اور ہم اس کے احوال کو بخوبی واقف تھے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کا جو حال احوال جیسا ان کے اوپر گزر رہا تھا، تمام احوال سے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا تھا آپ کس دور سے گزر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر تمام کی تمام حقیقت ظاہر کر دی تھی اللہ نے۔ آپ والد سے کہتے کہ اذ قال ابراہیم وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم مجاوری کرنے بیٹھتے ہو۔ مطلب عاکفون مطلب اتخاب بولتے نا، امن اتخاب اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے تھے، پھر اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھتے کہ یہ کیا چیز ہو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور اس کے آگے ایسے ہی بیٹھ جاتے ہو، تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں، خالو وجدنا بانا لہا عابدین، سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ دیکھیں جواب اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بول سکتے وہ لوگ، خالو وجدنا بانا عابدین، یہی مطلب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا بھی یہی آنسر ہوتا تھا کبھی بھی۔ مطلب اللہ تعالیٰ ایک اینڈنگ پوائنٹ جو ہے اللہ قرآن میں جو بھی ہے ایک آخری بات، مطلب ابراہیم علیہ السلام پہلے سے بھی جب آپ ہوش سنبھالے تب سے ہی نفرت کرتے تھے۔ آپ کیا بولے، قالوا لقد كنا انتم وآباؤكم في ضلال مبين، آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ آج کا بھی وہی دور ہے، کسی کو کچھ بھی بولو، مطلب کیا فاتحہ نہیں کرنا ہے، درود مطلب فاتحہ درود نہیں کرنا ہے، درگاہوں کے پاس نہیں جانا ہے، یہ تعویذ نہیں بننا ہے، اور جو بھی ہے ایسا اللہ کو چھوڑ کے جو جس کسی پر بھی عقیدہ ہمارا گیا بولے تو ختم، ہمارا عقیدے میں بگاڑ آ گئی۔ آج بھی وہی حال رہتا، کسی کچھ بھی بولے تو کیا بولتے ہم ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی پائے، مطلب وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، ہو جانے والوں میں سے تھے کیا بولتے، اللہ کے اوپر ہے ان کا ذمہ، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ان لوگوں کی حالت، مگر آپ تو آپ کے پاس تو علم آ گیا بولے تو آپ عقل مندی اسی میں ہے کہ اگر انسان کے آگے کچھ بھی مطلب علم آ گیا، سچائی آ گئی، پہنچ گئی بولے تو اس کو مان لینے میں عقل مندی ہے۔ جیسا یہ لوگ دینی معاملات میں بولتے ہیں، جیسا ہمارے آباء و اجداد کو اسی طریقے پہ پایا تھا، تو دنیاوی معاملوں میں یہ لوگ آباء و اجداد کو نہیں مانتے، جیسا کہ وہ مٹی کے برتنوں میں کھاتے تھے، مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، وہ لوگ ایسا مطلب ایسے لاوش زندگی نہیں جیے تھے، مطلب ان لوگوں کو اب ایسی لائف جینا پسند نہیں ہے، دنیاوی حالات سے آباء و اجداد کو نہیں مانتے، لیکن دین کے معاملوں میں جو ہے ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے پائے تھے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز، اگر قیمتی کچھ بھی چیز خریدنا ہو تو آپ اپنی عقل مندی لڑاتے جاؤ کہاں پر یہ چیز اچھی ملتی، اسی طرح سب سے بڑی عقل مندی اس میں ہے کہ آپ اپنے دین کے لیے آپ کے عقل دوڑائیں، کیونکہ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا آپ کے لیے، دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، سب سے بہترین کیا چیز ہے، آخرت ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، لغو و لہو، دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، ہمارے لیے آخرت بچ کے رہنے والی ہے۔ اس کے بعد آپ کی دعوت دیتے ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو ہے 3 مرحلوں میں تھی، جو کہ پہلا مرحلہ کیا تھا، آپ اپنے
बाप के साथ, उसके बाद कौम के पास गए, उसके बाद वक्त के बादशाह के पास दावत दी, जो कि 3 किस्म के शिर्क को रद्द करते हुए आए थे। पहले क्या था? आप अपने बाप आजर को, आजर मतलब हिदायत दावत देते रहते। हमें भी क्या चाहिए कि हम भी अपने घर ही से ही इसकी शुरुआत करें। आप अपने वालिद को कहते थे कि आप एक मतलब खुसूसियत एक ऐसी थी कि आप एक ही मतलब एक 2-3 जुमलों में सामने वाले की बात को खत्म कर देते थे, मतलब उसकी हुज्जत तमाम कर देते। वो लाजवाब हो जाते थे, आगे वाले जवाब देने के काबिल नहीं रहते थे। जैसा कि आप अपने वालिद के पास गए और फरमाया, इस खाला इब्राहिम या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मा वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैय्अन। जबकि उन्होंने अपने बाप बाप से कहा कि अब्बा जान, आप इन इन इनकी पूजा पाठ क्यों करते हैं जो कि सुनते नहीं, देखते नहीं, ना आपको कुछ भी फायदा पहुंचाते हैं। देखिए, बाप मुशरिक है, लेकिन आपका अंदाज देखिए, या बती आगे भी, मतलब अय अब्बा जान, अय अब्बा जान। आजकल के जो नौजवान हैं, अगर कुछ भी मतलब दीनी इल्म सीख गए बोले तो अपने बाप अपने बड़ों से इस तरह पेश आते हैं जैसा कि पूरा दीन हम सीख गए, और उनके बाप दादा अपने बड़ों को मुशरिक या काफिर बोल के ऐलान कर देते। इसके बाद आगे के आयत में देखे, या बती इन्नी खज्जानी मिन इल्मी मा लम यअतीका बि फत्तबिऊनी अहदीका सिरातम सवीया। मेरे मेहरबान अब्बा जान, आगे की आयत 43 आयत में सूरह मरियम आयत नंबर 43 में आप फरमाते हैं, मेरे मेहरबान अब्बा जान, आप देखें मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं, तो आप मेरी ही माने, मैं आपको बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी रहनुमाई करूंगा। देखिए, मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है इस आयत से कि आपको इससे नबूवत मिल गई। इस वक्त जब आप अपने बाप के घर में थे, वहीं पर आपको नबूवत मिल गई। आप मेरे पास ऐसा इल्म आया बोल रहे हैं ना, इस वजह से अपन ये समझ सकते हैं इस आयत से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहाँ पर नबूवत मिल गई। मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो कि आप, अब यहाँ पर बाप कह सकता कि क्या मैंने अपने बाल ऐसे ही सफेद किए थे? अब यहाँ पर मामला उल्टा हो गया। बाप बेटे को समझाने वाला रहता असल में, तो यहाँ पर बेटा बाप को समझा रहे कि मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं। आप मेरी बात मानिए, आपको मैं सीधी राह पर चला दूंगा बोल रहे। क्या बाप सुनने वाला था? नहीं सुनता। इससे क्या पता चलता, अगर खलीलुल्लाह के बाप भी रहने दो, आप अपने से कुछ भी नहीं करे बोले तो अल्लाह ताला हिदायत देने वाला ही नहीं। जब तक आप खुद नहीं जानते पहचानते जो हक है, उसको अल्लाह ताला आपके ऊपर वाज़े करने वाला, आपकी जिद्दोजहद होना चाहिए उसमें। अगर खलीलुल्लाह के बाप भी रहने दो, अल्लाह ताला हिदायत नहीं दिया वहां पर। इसके बाद क्या है, या अबती ला ताबुदु शैतान इन्न शैतान कान लिरब्बिही असिया। मेरे अब्बा जान, आप शैतान की परस्तिश से बाज आ जाएं। शैतान तो रहमान का बड़ा ही नाफरमान, सरकश, बागी जिसको कहते हैं ना, नाफरमान था। देखिए यहाँ पर लगातार आयतों में या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान। आपको मतलब काफिर भी रहने दो, माँ बाप, अल्लाह और उसके रसूल के बाद का दर्जा अल्लाह ताला ने माँ बाप का रखा है।
काफिर मुशरिक पे रहने दो, आपको कुछ भी हक नहीं है कि उन लोगों को ताना कशी करे, उनके ऊपर खर्च करना छोड़ दे। हाँ, इतना है कि उनके गलत बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन अगर बाप मोमिन है तो उसकी अच्छी बात मान लेना, इसी में अपनी भलाई है। या बती ला ताबुदु शैतान, मेरे अब्बा जान शैतान की परस्तिश ना करें। आप इतना ज्यादा मतलब मेहरबान होकर समझा रहे हैं अपने बाप को, लेकिन बाप मानने को ही तैयार नहीं। या बती इन्नी अखाफु अन यमसस्का अज़ाबुन मिन रहमानी फकूनु लिश्शैतानी वलिया। अब्बा जान, मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर अल्लाह का अजाब ना आ पड़े, आप शैतान के साथियों में से ना बन जाइए। यहाँ पर देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को किस तरह से समझा रहे हैं, बचपन से ही समझाते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला यहाँ पर लास्ट एंडिंग पॉइंट, इसके बाद बाप का जवाब देखिए। खाला अरागिबु अंता मन आलिहतिका या इब्राहिम, इब्राहिम तुम मेरे माबूदों की मतलब मेरे इलाहों की नाफरमानी रूगरदानी करते हो। लाइन तंतही ला लनरजुमन्नका व अहजुरुका मिन मलिया। सुन, अगर इब्राहिम तू बाज ना आया तो मैं तुझको पत्थरों से मार मार कर हलाक कर डालूंगा। देखिए जवाब बाप का। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधी राह पर चल रहे, कौम का भी यही जवाब था। उसके बाद बाप का जवाब देखिए, एक मुद्दत दराज तक मुझसे तो अलग हो जा। खाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या क्या बोले, ना तंग ना ताना कशी करे, ना कुछ ना किधर, अच्छी तरह से। खाला सलामुन अलैका सअल तो सअसअलु सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं आपके लिए इस्तगफार करूंगा मेरे रब से, आप पर सलामती हो, कहकर वहां से घर से निकल गए। अब यहाँ से आपकी आजमाइशों का सिलसिला शुरू। आप यहाँ मतलब घर से तो निकल गए, लेकिन वही मतलब वही शहर में थे पहले, अब यहाँ तो घर छोड़ दिया। उसके बाद बाप को समझा, लेकिन कुछ भी समझने के लायक मतलब अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नहीं दिया, समझे। अगर अल्लाह हिदायत देता तो सब के सब मतलब पूरे के पूरे मोमिन बन जाते थे। इसके बाद आप कौम की तरफ पलटे, कौम के पास जो कि सितारा परस्ती में मुब्तला थी कौम। आप अपने कौम के पास गए और कहा, तुम इन किन चीजों की इबादत करते हो जो कि तुम्हें ना नफा पहुंचाती है ना नुकसान। बतलो अलैहि नबा इब्राहिम, उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुना दो। सूरह शुअरा आयत नंबर 69। इस खाला इब्राहिम व कौमिही मा ताबुदू, अपने कौम से कहते हैं कि ये किन चीजों की इबादत करते हैं। खालू नअबुदु असनामा, हम बुतों की इबादत करते हैं। फनज़्ज़लु लहा आकिफून, और हम उसी के पास मतलब उसके आगे ही बैठ जाते हैं, हाथ जोड़कर उसी के आगे बैठ जाते हैं। खाला हल यस्मऊनकुम इस्तदउकुम, मतलब क्या वो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं जब तुम उसको बुलाते हो, जब तुम दुआओं के जरिए तुम इन माबूदों को बुलाते हैं, तो क्या ये जवाब देते हैं, सुनते हैं। कौन बोल रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से पूछ रहे, जवाब में क्या है, ये सब हम लोग नहीं जानते, हमारे आबाओ अजदाद को इसी तरह पाए और यनफउका
और यजुर्रू का, क्या ये तुम्हें नफा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कालू बल वजदना आबाना कदालिका यफअलून, इसी तरह करते हुए पाया था हमने अपने आबाओ अजदाद को, कदालिका जैसा, इसी तरह पाया था, यफअलून करते हुए। देखिए, अपना बाप को समझाया, समझाए तो भी वही जवाब, कौम को समझाए तो भी वही जवाब। खाला अफराई तुम मा कुंतुम तअबुदून, क्या तुम जानते भी हो तुम किसकी इबादत करते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछे, आपने फरमाया कुछ खबर भी है जिनकी तुम पूजा पाठ करते हो, क्या चीज है ये? नहीं, मतलब वही जवाब। यहाँ पर आप अपने अल्लाह की दावत देते हैं। हम क्या बोलते हैं, मतलब फ़इन्नहु, तुम्हारे पास कुछ भी हक है या नहीं, ऐसे ही तुम हमारे पास आके बुतों की इबादत करने से रोक रहे हो? बोले तो आपने क्या क्या जवाब दिया? मेरा अल्लाह वो है जो जमीन आसमान को बनाने वाला है और मैं इसके ऊपर शाहिद हूँ, बोलते हैं। यहाँ पर कौम को अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, लेकिन वो हरगिज मानने को तैयार ही नहीं। अब अभी भी मतलब शिर्क यहाँ अभी भी बाकी है, समझने की कितनी बार मतलब क्या भी करो, ये लोग समझने तैयार नहीं है। अब क्या मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक हिकमत के तौर पे इन्हें समझाने के लिए सोच लेते हैं कि अल्लाह के कसम खाकर कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे माबूदों से अकेले में बहुत बड़ी एक चाल चलने वाला हूँ, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जैसा कि अल्लाह ताला जमीन और आसमान की मिल्कियत जाहिर कर दी थी, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बात में पुख्ता थे कि ये सितारे, ये बुत, ये सूरज, चांद, इन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि अल्लाह ताला आपका ईमान पुख्ता करने के लिए इस तरह आप पर तमाम के तमाम जाहिर कर दिए हकीकत क्या थी वो लोगों की। जब वकज़ालिका नूरी इब्राहिम, सूरह सूरह अनआम आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने ऐसे ही तौर पर तमाम जमीन और आसमान की मखलूक़ात दिखा दी थी, और ताकि वो कामिल यकीन वालों में से हो जाए। एक बड़ा मिशन लेके चलना था आपको, मतलब आप ही की नस्ल से पूरे के पूरे अंबिया आने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इन पर तमाम के तमाम जमीन और आसमान की हकीकत पूरी बयान कर दी थी, ताकि ईमान पुख्ता हो जाए। अब देखिए, फलम्मा जा लैला, सूरह अनाम आयत नंबर 76 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने कौम के पास गए, फिर फरमाया रात की तारीखियों में, फलम्मा फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ का कौकब खाल हादा रब्बी फलम्मा अफल खाला। जब आप अपनी कौम के पास जाकर कहते हैं, मतलब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल में नहीं सोच लिए थे ये बात। अपन अक्सर इसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तारों को अपना माबूद माने थे, या बोले तो सूरज की तरफ देख के अपना इलाह माने थे, या बोले तो चांद चांद को देखकर अपना इलाह माने थे। ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन कौम को एक हिकमत के तरीके से समझाने के लिए आप अपने कौम के पास जाकर, मतलब एक सरकास्टिक लेवल से, मतलब एक मजाक के अंदाज में पूछने के लिए गए थे, क्या ये सितारा हाजा रब्बी, ये मेरा रब हो सकता है, हमारा रब हो सकता है क्या? फिर जब रात की तारीखी उन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा, आपने फरमाया कि ये मेरा रब है, मगर जब वो गायब हो गया तो आपने फरमाया कि मैं गायब होने वालों को मोहब्बत नहीं करता। यहाँ पर कौम को समझाने के लिए आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है
सितारों को आप लोग जैसा परस्तिश करते हैं ना, देखो सितारा गायब हो गया, लेकिन मैं गायब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर उसके बाद क्या हुआ, खमरा, फलम्मा रआ खमरा, और चांद की तरफ देखा, बादिगन खाला हाजा रब्बी, क्या ये मेरा रब हो सकता है? कौम के पास ये सवाल हो रहा। फलम्मा खाला लइन लम यहदीनी रब्बी लकूनन्न मिनल कौमिन ज़ालिमीन ज़ालिमीन। फिर जब चांद को देखा चमकता हुआ तो फरमाया कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत ना की होती तो मगर मैं गुमराह लोगों में से शामिल हो जाऊंगा। यहाँ पर क्या समझाना मकसूद है कि वन मैन आर्मी, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे। आज के दौर में इतने सारे मुसलमान हैं दुनिया में, लेकिन कोई भी अपने दीन के खिलाफ कुछ भी बात हो रही तो खड़े होके बात करने के लिए इंसान बहुत ज्यादा डरता। हमें क्या हो जाता हमें मालूम, हमारे घर वालों के साथ, अपने औलाद के साथ, अपने बीवी के साथ क्या हो जाता, बल्कि डरते कुछ भी जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी जो हिम्मत थी, आप अकेले थे, कौम से लड़ रहे, बाप से लड़ रहे, अब आगे जाके बादशाह के आगे पेश होते। अब उसके बाद क्या हुआ, चांद भी चले गया। अगर मुझे मेरा रब हिदायत नहीं देता तो मैं भी तुम लोगों में से हो जाता था। और उसके आप कौम को समझा रहे हैं बात। फलम्मा रआ शम्सा, जब सूरज को देखा, बादिगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा कबीर, मतलब चांद को देख के बोलते हैं शायद ये बहुत बड़ा है, ये रब हो सकता, बोलते हैं कौम को समझाने के लिए। फलम्मा अफलत क़ाल या कौमी इन इन्नी बरीउन मिम्मा तुशरिकून, जब चांद भी गुरूब हो गया, फिर जब चांद भी मतलब सूरज भी चमकता हुआ दिखता, लेकिन वो भी उसके बाद गायब हो जाता। जब क्या फरमाते हैं आप, बेशक मैं तुम्हारे जो कुछ शिरक कर रहे हो उससे बरी हूँ। इतनी नजाकत, इतनी गंदगियों में से आप मुशरिक नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला खुद सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप किसी भी तरह के शिरक में मुलव्विस हरगिज नहीं थे। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, इन्नी वजहत वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मेरा चेहरा उन तमाम से बेरुख, मतलब मुंह फेर लेके उस अल्लाह की तरफ करता हूँ जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है। एक सू होके, मतलब सब कुछ छोड़ दे के। हनीफ हम किसको बोलते हैं, एक अल्लाह को मानने वाले को हनीफ बोलते हैं। और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन। यहाँ पर कौम क्या जवाब देती, क्या तुम्हारे पास कुछ भी हक है? नहीं बोले तो आप ऐसे ही हमारे लिए ऐसा फरमा रहे हो, तो आप क्या जवाब देते, मैं उस अल्लाह को मानता हूँ जो जमीन और आसमान की मिल्कियत का मालिक है, और मैं उसके ऊपर शाहिद भी हूँ। यहाँ पर हम बहुत सारी हुज्जत करती, जैसा कि अल्लाह ताला आगे की आयत में फरमाया, और उनसे उनके कौम ने हुज्जत करना शुरू कर दिया। आपने फरमाया क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो, हालांकि उसने मुझे तरीका बतला दिया, और मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। मतलब सितारों की वजह से तुम परेशान आते, तुम हलाक हो जाते, बल्कि कौम डरा रही थी। इसलिए आप ये जवाब दे रहे कि मैं उन तमाम से नहीं डरता हूँ। अगर मेरे रब, मेरा परवरदिगार कुछ करना चाहे तो ये अलग बात है, मैं इस पर गवाह हूँ कि अल्लाह ताला जमीन और आसमान को बनाने वाला है। आजकल जो है धड़ा, मतलब वो जो भी सितारों को मानने वाले हमारे, मतलब मुसलमानों में भी बहुत ज्यादा लोग सितारों को मानते हैं।
जैसा कि पेपरों में आता है कि आज आप ये कलर नहीं पहनना, मतलब ये वक्त ये नहीं करना, ये सही नहीं होता। सितारे मतलब ये महीने में पैदा होने वाला उनका सितारा ये है, बल्कि आजकल मतलब आप शिरक कर रहे हैं। हर चीज जो है अल्लाह के साथ मिलाते हैं, जो कि पेड़ पौधा पत्थर सितारा छल्ला ताका तावीज जो भी है, आपका अकीदा अल्लाह से हट कर इसके ऊपर गया बोले तो आप शिरक करने वाले हैं। पैगंबरों को अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा के वजतनिबुत तागूत, अल्लाह के अलावा आप जिस किसी पर भी अकीदा रखते हैं वो तागूत, शैतान ही नहीं एक तागूत, ये हर तमाम चीज तागूत है। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को एक अल्लाह की तरफ दावत देने और तागूत से बचाने के लिए भेजा बोल रहा है अल्लाह ताला कुरान में, एक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए और तागूत से बचाने के लिए। उसके बाद सितारों का रद्द हो गया यहाँ पर। अल्लाह अल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्या है, अब जो है बुत परस्ती का रद्द करना है। बुत परस्ती जो कि आपका मशहूर वाकया है, तो आप लोग तमाम जानते ही होंगे कि आप किस तरह बुतों को तोड़े थे। इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में ही इसको भी हम जानेंगे। और अल्लाह की कसम खाकर आपने क्या फरमाया था, मैं तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारे बुतों के साथ ऐसा चाल चलने वाला हूँ। ये साबित करना था कि मतलब ये बुता आपको कुछ भी नफा नहीं पहुंचा सकते। और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे उन बुतों के साथ सब अलायदगी में फिर एक चाल चलूंगा कि तुम इसको मतलब एक चाल चलने वाला हूँ बोलते। एक दिन ऐसा आता है कि लोगों को ईद का माहौल जो कि बाहर खुले मैदान में जाके ईद मनाने वाले रहते हैं, वो उस रोज सब के सब चले आते। आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी उनके कौम के लोग आके बुलाते, क्या तुम नहीं चल रहे, बोलते तो आप सितारों की तरफ देख कर बोलते कि मैं आज बीमार हूँ बोलते। क्यों इस तरह करे, सितारे की तरफ क्यों देखे, वो लोगों को ईमान पुख्ता हो जाना कि सितारों की वजह, जब कि आप सितारों की रद्द कर चुके थे तो सितारों की वजह से इनकी बीमारी हो गई इनको, बल्कि इन लोगों को यकीन होने के लिए सितारे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं बीमार हूँ बल्कि। इसके बाद तमाम के तमाम कौम बाहर चले जाती, गांव से बाहर। आप बुतखाने में जाते हैं, बुतखाने में जाके बुतों से सवाल करते, ये जो कुछ तुम्हारे लोगों के सामने है ये खाते क्यों नहीं। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, तुम उन बुतों की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ नफा नहीं पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते, ना कि उसके सामने जो कुछ रखा है अगर मक्खी उसको ले जाए तो उसे भी वो छुड़ाने की ताकत नहीं रखते। ये लोग मतलब कौम और अपने बाप को जो है अच्छी तरीके से समझाने पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बात मानने वाले नहीं थे। इन लोगों के ऊपर एक हथौड़ा चलाना जरूरी था, इस वजह से आप हिकमत के साथ वो लोगों को समझाने के लिए ये काम करते कि पूरे के पूरे बुतों को तोड़ देते, आखिरी में एक बड़े बुत को छोड़ देते, जो हथौड़ा था उसके हाथ लटका देते वहां पर। क्यों, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया, तमाम के तमाम लोग उसके तरफ पलटे। फजअलहु जुज़ाअ इल्ला कबीरन लहु लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, बस उसने उन तमाम को तोड़ फोड़ कर दी। सूरह अंबिया आयत नंबर 58, उसने तमाम की तोड़ फोड़ कर दी। ये देखा, हाँ सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया, इसलिए कि सब के सब उसी की तरफ लौटे। खाल मन फाला हाजा, तमाम के तमाम आ गए गांव में, फिर से आ गए और कहने लगे, खालू मन
قال هذا بآلهتنا إنه لظالمين. खालू, जो वो लोग कहने लगे, मन फाला हाजा, किसने काम करा हमारे बुतों के साथ, हमारे इलाहों के साथ, हमारे खुदाओं के साथ. हमने क्या कहा, खालू समेना फता यस्कुरु हम यखूलु लहू इब्राहिम, बोले हमने एक को नौजवान को उनका तस्करा करते हुए सुना था. किसका मतलब, कोई भी देखिए किसी की भी मुखालिफत करते हैं तो अगर उससे कुछ भी गलत हो गया बोले तो सबका आखिर मतलब सबकी सोच उसी की तरफ जाती जो उसकी मुखालिफत करते हैं. इसीलिए कौम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही नाम ली. हमने एक ऐसे नौजवान जानते हैं जो कि इसका जिक्र करते थे जिसका नाम इब्राहिम है. सूरह अंबिया आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाता है, खालू फातू बिही अला अयुनिहिन नास लअल्लहुम यशहदून. बस उसने चाहा कि मजमे में लोगों के निगाहों के सामने लाओ ताकि सब देखें. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया ये पूछने के लिए कि इन बाबतों के साथ क्यों ऐसा करे, बल्कि पूछने के लिए बुलाया गया. खालुआ अंता फअलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तुमने हमारे या माबूदों के साथ ऐसा किया है, ये हरकत की है. आपने क्या फरमाया, खाला बल फअलहु कबीरहुम हाज़ा फसअलहुम इन कानू यंतिकून. देखिए क्या मुंह तोड़ जवाब दिया. अल्लाह ताला भी कुरान में यही फरमा रहा है कि आप कैसा मुंह तोड़ जवाब दिए, यहीं पर नहीं और बादशाह के पास भी आप इसी तरह का जवाब देते हैं. क्या कहा आपने जवाब दिया, बल्कि उस काम को उसके बड़े ने किया है, तुम अपने खुदाओं से ही पूछो अगर वो बोलते चालते हो. वो जानते थे कि वो बोलते नहीं. अब यहाँ पर बड़े बुत को छोड़ देने की एक ये भी हिकमत थी कि अगर कोई मतलब बड़ा एक दान है बोले तो उसके जो चमचे रहते अगर वो उसको तमाम मार डाले बोले तो बड़ा मतलब वो अपने चेलों को ही नहीं बचा सका, वो अब तुम लोगों की क्या हिफाजत करेगा. ये भी समझाना मकसूद था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि उसके आगे सब टूट गए तो वो क्या करता रहा. देखिए यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूठ नहीं बोलते, जब बीमार हो गए बोलते. और एक यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या मतलब उस कबीर बड़े बुत से पूछिए अगर वो बोलता तो. यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, झूठ की एक किस्म जो है तोरिया बोलते हैं इसको. ये तोरिया क्या है बोले तो बोलने वाला एक सोच के बोलता और आगे अंडरस्टैंड कर लेने वाला, समझने वाला एक दूसरा अंडरस्टैंड कर लेता. जैसा है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे थे, वहां पर पूरी तरह से नाकाबंदी थी. जब अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि पीछे कौन बैठे हैं, मतलब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बोलते हैं, ये हादी है बोलते. वहां पर आप झूठ नहीं बोले थे, तोरिया बोलते हैं इसको. इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इसी तरह मतलब बीमार है, मतलब यहाँ पर सितारों की तरफ देखते बीमार है मतलब एक तरह का डिप्रेशन. इन लोगों को कैसा समझाना बल्कि वो था उनको बीमारी, बीमार थे मतलब डिप्रेशन में थे. यहाँ पर हादी बोलते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दीन के हादी, हिदायत करने वाले, हिदायत के रास्ते पर चलाने वाले हादी थे. हादी है बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे, ये मेरा हादी है बोलते. वो लोग क्या समझे, मतलब कुरैश उस जमाने में जो है रेगिस्तान में अच्छे माहिर से माहिर लोग भी रास्ता पहचान नहीं सकते थे. वहां पर एक हादी होना जरूरी रहता था वो लोगों को. तो आप मुझे रास्ता बताने वाला है ये शायद समझते वो लोग, कुरैश जो नाकाबंदी कर चुके थे वो लोग रास्ता बताने वाला हादी बन के समझते. यहाँ पर भी उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को
मतलब झूठ नहीं बोले यहाँ पर। इसके बाद कौम ने अपने नफ्स की तरफ पलटे, मतलब कौम समझ लिए कि "है इब्राहिम, तुम ही जालिमों में से है"। आगे आयत आ रही 64 आयत के, फरजहू इला अनफुसिहिम, और वो अपने नफ्सों की तरफ पलटे, खालू इन्ना इन्नकुम अंतुम जालिमून, बस ये लोग अपने दिलों की तरफ खाइल हो गया और कहने लगे वाक़ई जालिम तो तुम ही हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही थोड़े बोल के ये सब कुछ जान लिए। फिर अपने सरों को झुका ले, सुम्मा नुकिसु अला रुऊसी लक़द अलिमत मा हाज़ा ला यंतिखून, आप जानते हैं कि ये बोलते नहीं, बोलते थे आखिर में। अपने सरों को झुका लिया, फिर अपने सरों को औंधा कर लिए और कहने लगे कि तुझे तो मालूम है कि ये बोल चालने वाले नहीं। खाला फतअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शयअन वला यदुर्रुकुम। अल्लाह अल्लाह के खलील ने कहा कि, फरमाया कि तुम अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें कुछ भी नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। उफ है तुम पर, उफ्फिल लकुम वलम तअबुदू मिन दुनिल्लाहि फला ताक़िलून। तुफ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम इबादत करते हो, क्या तुम इतनी अक्ल तुम में नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम उनकी इबादत करते हो। इसके बाद क्या हुआ, आप गिरफ्तार हो गए। अब यहाँ पर फिर आजमाइश, अपना मतलब घर छोड़ा, अपने बाप को छोड़े, अपने रिश्तेदारों को छोड़े। माँ का तो कुछ भी जिक्र नहीं आता, वालिदा क्या थे, मतलब बाप मुशरिक था तो बाप ही के दिन पे वालिदा भी थी शायद, इसलिए आपका जिक्र नहीं आता। और आपके भाइयों का जिक्र, जो कि 4 भाई थे, इसलिए लूत अलैहिस्सलाम आपके भतीजे भी मिलते हैं। जब हिजरत करके जाते वक्त लूत अलैहिस्सलाम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ चले आते। उसके बाद आप गिरफ्तार हो गए, आप शहर छोड़ दिया, घर छोड़ दिए, शहर छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हो गए। कौम मानने ही वाली थी, लेकिन अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि बाबिलोनिया, जिसको बोलते हैं बाबिल शहर, इराक का कैपिटल सिटी था, वहां पर लेके आते। अब यहाँ पर देखिए आबा परस्ती का रद्द हो रहा है। ये यहाँ पर एक हिकमत भी थी शायद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास भी जाना था। एक बड़ा हथौड़ा नहीं चलाने पर आप अपने बादशाह के पास हाजिर नहीं हो सकते थे, इसलिए आप एक ऐसी चाल चली जिसमें बादशाह के पास ये लोग इन्हें ले गए। यहाँ आबा परस्ती की रद्द होने वाली है। कहने लगे, बादशाह क्या कहता, क्या तुम उस ऐसे खुदा को जानते हो जो कि मेरे सिवा तुम इबादत करते हो? हाँ, मैं उस खुदा को जानता हूँ जो कि जमीन और आसमान का मालिक है और मुझे जिंदगी देता है और मौत देता है। ये यहाँ पर बादशाह असल हकीकत, जिंदगी और मौत की असल हकीकत जो थी, समझ नहीं पाया। उसने क्या किया, 2 कैदियों को बुलाया जिसके ऊपर मौत का फैसला सुनाया जा चुका था। एक कैदी को बुलाता, उसको कत्ल कर देता, दूसरे को छोड़ देता। देख, मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम मतलब ऐसी खास खुसूसियत थी कि 2-3 जुमलों में आगे वाले की बात की हुज्जत को खत्म कर देते थे। तो आप समझ गए कि ये बादशाह मतलब अकल का पैदल है। ये असल हकीकत जो थी जिंदगी और मौत की, इंसान की पैदाइश क्या थी, मतलब इंसान नुत्फे से माँ के रहम में जैसा पलता बढ़ता और बड़ा होता, उसको जवानी आती, बुढ़ापा होता और मौत दे देता अल्लाह ताला, उस तरह
اصل زندگی کی حقیقت نہیں پہچان سکا، اس لیے آپ آگے کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ زبردست، مطلب ایسے آپ ایسی زبردست قربانیوں سے گزرے، دیکھیے کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کرتا کہ وہاں کا بادشاہ کو لوگ الہ مانتے، خدا مانتے، جس کو اس کے آگے ٹھہر کر آپ حجت کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں فرما رہا، علم تری علی الذی حاج ابراہیم فی ربہ انت آتاہم اللہ الملک، جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اس شخص کو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے جگہ رہا ہے جس کو ہم نے سلطنت دی تھی۔ اس خالہ ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، خالہ انا یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں، وہ اللہ جو مجھے زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ خالہ ابراہیم، اس نے زندہ کیا، مار دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، خالہ ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ دیکھیں ختم، اس کی پوری بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ اس خالہ ابراہیم مطلب خالہ ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المغرب مشرقی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہو تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ ختم، اس کی بات یہاں پر ختم ہو گئی، شانہ ہو گیا بادشاہ، آئیں بائیں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ لیکن کیا ہے، وہ اس کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کیا کہا، اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا ہو تو ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ بھڑکائی گئی، وہ کیا تھی، کتنی تھی، کتنی زیادہ آگ تھی کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن ایک منجنی مطلب اتنی زیادہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے آگے یہ تیاریاں کیوں چل رہی بولے تو شاید نوجوان اس کی عقل ٹھکانے آ جانا، اس کی بات اپنی بات کو رد کر لے کے یہ مجھے ہی خدا ماننا ہے، ڈر جانا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کی بات مان لینا بلکہ۔ لیکن یہاں پر الٹا ہی معاملہ ہو گیا، جب آگ بھڑکائی گئی، کیا خوب کہا تھا اقبال نے، بے خطا کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ دیکھیے بے خطر عشق میں انسان کچھ بھی نہیں سوچتا، آگے پیچھے کیا ہونے والا ہے یہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ یہاں پر عقل سوچتے ہی رہ گئی اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود دیے، عقل پیچھے رہ گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے۔ یہ ہوتی ہے عشق۔ لیکن ہم کیا ہے، پہلے ہمیں فائدہ ہونا، ہم کچھ بھی مطلب غیر دینی کام جیسا کہ سود لے رہے، سود سے ہمیں جو فائدہ ہوتا اس سے زیادہ فائدہ ہو تو ہم صحیح راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں فائدوں کی ضرورت ہے دی، ہم اپنے دین پہ چلنے کے لیے فائدوں پہ، اس سے کتنا فائدہ ہوتا یہ سوچنے میں رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے خلیل کے بہترین دوست مان لیا اللہ تعالیٰ، وہ ایسے رہتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آگ کو حکم ہوا، یا نار کونی بردم علی ابراہیم بردم و سلامت، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کو حکم ہوا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں پر بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ آپ سکون میں ہیں، اب اگر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو رکھے بولے تو یہاں یہ مطلب سب کو پلٹا لیتے، بلکہ بادشاہ کیا سوچا،
انہیں یہاں سے ہٹا دینے میں ہی عقل مندی ہے، بلکہ یہاں مطلب آپ اپنا جو اب دیکھیے انسان کہیں بھی اپنا جو ملک رہتا وہ چھوڑنے میں بہت تکلیف ہوتی. یہاں پر گھر چھوڑ دیے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیے، قوم کو چھوڑ دیے، اپنا جو مطلب کیا بولتے ہیں، اپنا آبا شہر چھوڑ دیے. وطن چھوڑنے کا ٹائم آ گیا. آپ یہاں پر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے. کہاں پر؟ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور بھتیجا جو کہ لوط علیہ السلام تھے. دوسری زمین پہ چلے جاتے. کہاں؟ الخلیل یعنی فلسطین. فلسطین جو کہ بیت المقدس، وہاں پہ جو کنان ہبرون بولتے نا فلسطین، وہ شہر میں جا کے بس جاتا ہے. اب آپ کی یہاں پر دعوت انڈیپینڈنٹ ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد یہاں سے اب اور زیادہ ہو جاتی. اس کے بعد آپ مصر جاتے دعوت دینے کے لیے وہاں کے بادشاہ کو، اپنی بیوی کو لے کر. وہاں پر وہاں کا بادشاہ جو ہے جو بھی خوبصورت عورت دکھتی اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور اس کو مطلب وہاں پر بادشاہ اگر شوہر بولتے تو شوہر کو قتل کر دے کے اس کی بیوی کو اپنے انڈر کنٹرول میں لے لیتا تھا. حوا علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت جو ہے حوا علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد بیوی سارہ علیہ السلام. سارہ علیہ السلام جو ہے بہت خوبصورت تھے، اس لیے بادشاہ نے آپ کو مطلب ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بھی جھوٹ نہیں بولے. مطلب اس سرزمین پر جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کے لحاظ سے ہر ایک جا کے بھائی بہن مطلب دینی بہن کے طور پہ آپ کیا بولتے، یہ میری بہن ہے بولتے بادشاہ سے. پھر بھی بادشاہ سارہ علیہ السلام کو اپنے قبضے میں لے لیتا، بدتمیزی کرنا چاہتا. اور مطلب تمام واقعہ جو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ شل ہو جاتا اس بادشاہ کا. وہ وہاں کا بادشاہ کے ایک خاص انداز رہتے تو اس کا حاجرہ علیہ السلام کو دعا کرنے کے لیے کہتا تو آپ دعا کرتی تو پھر وہ صحیح سالم ہو جاتا، پھر سے وہی حرکت کرتا، پھر سے اس کا ہاتھ شل ہو جاتا. پھر تیسری مرتبہ یہ جان لیتا کہ یہ آپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ ان کی بیوی ہے. بلکہ اس کے بعد اپنی جو بیٹی ہے، لیکن یہود اس بادشاہ کی بیٹی جو تھی حاجرہ علیہ السلام. اب یہاں پر مصر کا سفر اللہ تعالیٰ اس لیے کرایا تھا کیونکہ وہاں پر مصر میں جو تھے وہاں پر قدیم مصر والے نہیں تھے، وہاں پر عرب جا کے بسے تھے، عرب جا کے وہاں پر قبضہ کرے تھے. وہاں سے حاجرہ علیہ السلام کو آپ کے نکاح میں لانے کے لیے یہ ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ وہاں مصر گئے. اور حاجرہ علیہ السلام جو کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن یہود یہ مشہور کر دیے کہ حاجرہ علیہ السلام ایک غلام تھی، لیکن یہ صحیح نہیں، یہ ملکہ تھی وہاں کی. اب وہاں کا جو بادشاہ تھا یہ میری سلطنت کی ملکہ بننے سے زیادہ تمہارے غلام رہنا اچھا ہے. اسی لیے یہود جو بولتے ہیں اصل بیوی تو سارہ علیہ السلام تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور سارہ علیہ السلام کی اولاد ہم ہے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں برکت دیے تھے. جو کہ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کریے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو ہے یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل تھی. اب جو یہود ہے بنی اسرائیل سے تھے، یہ اصل ہم ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بولتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کیا. لیکن وہ کیا بولتے ہیں، حاجرہ علیہ السلام لونڈی تھی، اصل بیوی سارہ علیہ السلام تھے، اصل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی ہم ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھتے جو کہ ایران، روم اور فارس اور جو ہے
मिस्र को भी खत लिखते। जब मिस्र के बादशाह को आप खत लिखे तब वो बादशाह वहाँ का जो था बहुत इकराम इज्जत करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत का, और इब्राहिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दोनों औरत और घोड़े तोहफे में भेजा था, जो कि एक गुलाम लौंडी थी। ये हिकमत भी थी कि इब्राहिम मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी मारिया खिप्तिया थी और उनसे एक औलाद पैदा हुई, अल्लाह ने उन्हें एक औलाद दिया था, उनका नाम था इब्राहिम बोल के रखे थे। ये एक बहरहाल ये एक सर्किल थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मिस्र गए आप बादशाह अपने बेटी को जो है सारा अलैहिस्सलाम को दे देते। आप लोगों के वो सारा अलैहिस्सलाम को लेके फिर फलस्तीन आ जाते। फलस्तीन आने के बाद अब तक जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम बे औलाद थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी, तो सारा अलैहिस्सलाम जो है ये कहते कि आप अपने निकाह में ले लो बोलते। जो हाजरा अलैहिस्सलाम को अपने निकाह में लेने को कहते हैं, आप निकाह में ले लेते। फिर उसके बाद दुआ करते कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला फौरन दुआ कबूल कर लेता। इससे क्या है, अगर कोई शख्स निकाह करे तो वो दुआ करना चाहिए कि वो औलाद के लिए सालेह औलाद अता करे। उसके बाद अल्लाह ताला क्या दुआ कबूल कर लेता। फबश्शिरनाहुम बिगुलामिन हलीम, हमने एक लड़के की बशारत दी थी जो कि हलीम बुर्दबार था। ये बुर्दबारी जो थी इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के आप आगे जाके देखते अल्लाह ताला जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेगुलामिन हलीम कहा, और इसहाक अलैहिस्सलाम को फबश्शरनाहुम बिगुलामिन अलीम यानी इल्म वाले लड़के की बशारत दी। आप इनकी औलाद में भी ये बात गौर फिक्र कर सकते कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हलीम बुर्दबार सबर, मतलब एक जो के रहती ना किसी की परवाह नहीं करना, जो भी अपनी बुराई करे तो उसको दरगुजर कर देना, सबर करने वाले। ये बहुत मतलब कुरैश के लोग बहुत ये खूबियां थे उन लोगों के अंदर, जो कि मेहमान नवाजी करते थे, दिल खोल के जीते थे, बहुत मतलब ज्यादा मोहब्बत वाले थे। अलीम यहाँ पर यहूद जो कि इसहाक अलैहिस्सलाम के याकूब अलैहिस्सलाम के कौम से थे। इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे जो गुलामुल अलीम इल्म वाले। अब भी देखिए आप यहूदियाँ ज्यादा इल्म वाले थे। हाजरा अलैहिस्सलाम को एक लड़के की बशारत दी थी जो कि गुलामुल हलीम बुर्दबार लड़का। अब यहाँ पर अल्लाह ताला उनका नाम इस्माइल रखने को हुक्म दिया था। इश्मा यानी अल्लाह, सुन लिया, ईल यानी अल्लाह। इब्रानी जबान में इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने सुन लिया। इस्माइल इसराइल अल्लाह का बंदा, इसरा मतलब बंदा, ईल यानी अल्लाह का। याकूब अलैहिस्सलाम का मतलब याकूब अलैहिस्सलाम का नाम असल में ये इसराइल, जिसको हम बनी इसराइल इसराइल बोलते हैं। जैसा कि आप देखिए इसराइल जो कि याकूब अलैहिस्सलाम की कौम थी, याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह थे। उसके बाद मिस्र के ऊपर फिरौन जो है उन लोगों को बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया था। उसके बाद अल्लाह ताला बनी इसराइल के पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेजे थे। मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल को छुड़ा कर लेके आए, लेके आके कहाँ लेके गए, फिर फलस्तीन लेके आए, शाम की तरफ लेके आए फलस्तीन। जो के उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो बहुत सारी कौमें गुजरी, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, सब इन्हीं के औलाद में से थे ये सब।
उसके बाद यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम 2000 साल तक कोई भी पैगंबर नहीं आए थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा पैगंबर गुजरे थे। आप अबुल अंबिया थे। ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से 1000 अंबिया तक गुजरे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला बने इमरान, यानी इमरान पैगंबरों में से तो नहीं थे, वो बहुत नेक अल्लाह के वलियों में से थे। अल्लाह ताला ने जो, जैसा कि कुरान में फरमाया, हमने इमरान के औलाद को भी मुंतखब कर लिया था, जो कि इमरान मरियम अलैहिस्सलाम के बाप थे। इमरान अलैहिस्सलाम की जोजा मुहतरमा जो थी, वो नजर मांगी थी कि अगर मुझे अल्लाह ताला बेटा दो तो मैं इसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में लगा दूंगी, बल्कि कसम खा लेते। तो जब अल्लाह को पता था कि ये बेटा नहीं बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम पैदा होते, अल्लाह ताला बखूबी जानता था कि जो काम आप मरियम अलैहिस्सलाम से ले सकता था, वो एक लड़के से नहीं ले सकता था। इसलिए आप मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमाता, जो हम कुरान में इसका मतलब एक सूरा भी है कि आले इमरान बोल के। इमरान की औलाद कौन थे? मरियम। मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत जो है, आपकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था, उसके बाद इस मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत का काम आपके खालू जो थे, आप खाला के शोहर जो थे, जकरिया अलैहिस्सलाम थे। जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे यहिया अलैहिस्सलाम थे। जकरिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी बहुत ज्यादा दुआएं करते थे औलाद के लिए। मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत उन्हीं के पास थी। मरियम अलैहिस्सलाम के पास कभी वो जाते तो मेहराब में देखते कि कई ज्यादा मतलब बेमौसम फल देखते। अगर अल्लाह मरियम को बेमौसम फल दे सकता तो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। उसके दुआएं, बहुत ज्यादा दुआएं देखिए आप लोग। ये तमाम इस मरियम अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये तमाम एक ही वक्त के थे। इन तमाम को देखिए, जकरिया अलैहिस्सलाम के सर पे आरा रख कर काट दिया गया। इतने ज्यादा मुबारक खानदान वालों को यहूद नसारा ये हाल करे थे। जकरिया अलैहिस्सलाम को आरा रख के काट दिया। यहिया अलैहिस्सलाम का कत्ल हो गया था, फिर भी वो अल्लाह को मानने वाले बोलते हैं अपने आप को। इसके बाद हाजरा अलैहिस्सलाम को एक गुलाम, मतलब गुलाम हलीम इस्माइल अलैहिस्सलाम अता करता अल्लाह ताला। आपको हुक्म होता कि आप छोटे दूध पीते बच्चे थे, उसके बाद हुक्म होता कि ले जाओ बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन, आबादी की वादियों में ले आके छोड़ दो बोल के हुक्म होता। एक औलाद जो दुआएं मांग मांग कर पैदा हुई, 80 साल उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते, फिर क्या हुक्म होता? अपने दूध पीते बच्चे और हाजरा अलैहिस्सलाम को ले आके बेआबो के वादी में छोड़। आज हम यहाँ पर खानों में बैठ के इतने इत्मीनान से ये चीज हम अपने दिलों में नहीं ला सकते। आज भी देखिए, रेगिस्तान, ऐसी वादियां रहते, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। वो हाजरा अलैहिस्सलाम थी जो के सबर की थी, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इसी तरह खलील नहीं बना लिया था। बहुत ज्यादा से ज्यादा आजमाइशों के दौर से आप गुजरे थे। अल्लाह ताला अपने बंदों को इसी तरह आजमाता, क्योंकि आखिरत में उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब दर्जात बुलंद करने के लिए। इंसान अपने आमाल से उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता जो कि अल्लाह ताला उसको देना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला आजमाइशों में डाल देता है इंसानों को। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ छोड़ देने के लिए, फिर छोड़ देते, वहां से पलट के आते रहते। हाजरा अलैहिस्सलाम देखिए, बार बार तस्करा करते थे, क्या हमें यहाँ पर किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे खुशखसाली है। बार बार कहते रहते। फिर हाजरा अलैहिस्सलाम, जैसे बुखारी हदीस में आता है, बुखारी की हदीस 3364 हदीस नंबर। आप ही खुद
सवाल करते कि क्या अल्लाह का हुक्म हुआ क्या, बोल के। तो हाँ अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है बोलते। बस इतना ही बोलना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाजिर अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए, ठीक है फिर आप जाइए, अल्लाह हमें यहाँ पर हलाक नहीं करता, यहाँ रहना हमारा जाया नहीं करता। तवक्कुल देखिए वहां पर ना। कुछ भी नहीं था जहाँ पे, ना जमीन का मतलब वस, वसाइल कुछ भी नहीं थे वहां पर जिंदगी जीने के लिए। ना पानी था ना खाना था, फिर भी तवक्कुल देखिए हाजरा अलैहिस्सलाम का। ठीक है, अल्लाह ताला हमें यहाँ पर रहना जाया नहीं करेगा। आज भी हर एक की तमन्ना उस वक्त, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे, ना इस्माइल अलैहिस्सलाम खैर छोटे थे, ना हाजरा अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो मुसलमानों का मरकज बनेगा। जैसा आज इस वक्त जिस खूबसूरती के साथ सबसे जमीन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि आए मक्का, इस जमीन पर तू मुझको सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है। आज हर एक के दिलों में वही मरकज है, उसी जगह की मोहब्बत अल्लाह ताला डाल दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के जाते हैं, बहुत ज्यादा दूर चले आते हैं, जहाँ पलट के देखने से ना हाजर अलैहिस्सलाम दिखते, ना इस्माइल अलैहिस्सलाम दिखते। जब उनकी तरफ पलट कर ये दुआ करते कि अल्लाह मैं मेरे औलाद को यहाँ पर छोड़ कर जाता हूँ, इस जगह के लोगों को तो बेहतरीन से बेहतरीन रिज़्क दे, यानी मेवों का फलों का रिज़्क दे दिया। इससे क्या पता है सबसे बेहतरीन रिस्क क्या है? फ्रूट्स है। और यहाँ के इस जगह की मोहब्बत सबके दिलों में डाल दे बोल के। इसके बाद जो कुछ एक मशकीजा रहता पानी का, वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले जाते, थोड़े बहुत खजूर रहते, वो भी तमाम हो जाते। हम माँ माँ जो है, अपने को तकलीफ होने से ज्यादा अपने औलाद को तकलीफ होने से बहुत ज्यादा, इंसान भी रहने दो शख्स में, औलाद को तकलीफ होने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती खुद अपने से भी। माँ के आगे छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा बिलबिला रहा, रो रहा, अब माँ ना कुछ खा रहे पी रहे, बच्चे को दूध कहाँ से? अब जो कुछ खजूर थे वो हो गए। अपने आंखों के सामने अपना बेटा हलाक होते हुए देखने से भी ज्यादा आप भाग दौड़ लगाना पसंद करिए। अल्लाह ताला को ये भाग दौड़ सफा से लेकर मरवा, फिर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अल्लाह, हाँ, इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके वो सफा पहाड़ी पर चढ़ सके। फिर वहां पर बच्चे को लेटा के जाती है, फिर एक फिक्र होती कहीं वहशी जानवर बच्चे को का नुकसान ना पहुंचा दे बोलकर फिर उतरते। फिर दूसरी तरफ कहीं कोई इंसान मुतनफिस तो दूर, वहां पर कुछ भी घास भी नहीं उगती थी वहां पर। अपने आप को वहां पर रख कर सोचे इस जगह पर कि हम अगर वहां होते तो हमारी हाल क्या होती। इस तरह आप 7 बार सफा से लेकर, अल्लाह कुरान में सफा से शुरू करा है, इसलिए हाजियों को भी बगैर हज, बगैर सई के सफा से लेकर मरवा चक्कर बगैर लगाए किसी का हज ना होता, ना किसी का उम्रा कंप्लीट होता। अल्लाह ताला नेक बंदों की इबादतों को ऐसा कबूल कर लेते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि जिंदगी में जब भी कुछ भी अजीम से अजीम कुर्बानी अगर देना चाहे तो बगैर शिकवे शिकायत। अब यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, ये जायज है, इंसान परेशान होना, रोना, ये जायज है, लेकिन अल्लाह से शिकवे शिकायत नहीं करना है। हाजरा अलैहिस्सलाम ना कुछ शिकवा करे, शिकायत करे, परेशान दौड़ रही। 7 चक्कर जब कंप्लीट होते, एक ऐसी आवाज आती, एक फरिश्ता जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पर या पैर, दो मतलब दो रिवायतें हैं, एक हदीस में आ रहा पर बल के, एक हदीस में आ रहा पैर बल के। पैर जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुला के थे वहां पर पैर मारते थे तो वहां से पानी का चश्मा फूट जाता। उस चश्मे को देख कर हाजरा अलैहिस्सलाम ये फरिश्ते को सब भूल जाते हैं, पानी को रोकने की कोशिश करते हैं सब।
पेट भर के पानी पीते और अपने बेटे को भी पिलाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि हाजरा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह की रहमत हो कि आप अगर उस पानी को नहीं रोकती तो ये अपने आप पूरी दुनिया को लेकर डूबता था। इसके बाद आप क्या कहते हैं, इब्रानी जबान में जो है जमजम बोले तो रुक जा, मतलब इसका होता है। जमजम कहती है, रोक लेती पानी को, कहीं जाया ना हो जाए रोक के। उसके बाद वहीं बैठे। जमजम की खुसूसियत ये भी है कि उसी में खाना और पीना होता था और खाने की हाजत नहीं रहती थी। अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो ईमान कबूल करने के लिए मक्के को आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो 2 महीने खाली मतलब जमजम पी के गुजारा करते थे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं थी। 2 महीनों तक आप वहीं पर जमजम के ऊपर गुजारा करे थे। और अल्लाह ताला जो नियत से जमजम हम पीते हैं, अल्लाह ताला उसको पूरी करता है, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हाजरा सलाम वो जो जमजम का कुआं था वहीं पर बैठ जाती और वहां से एक कबीला जो कि बनु जुरहम कबीला गुजरता रहता। मतलब उन लोगों का मामूल रहता, तिजारत के लिए वहां से गुजरते थे वो। तो वहां पर एक परिंदे को देखते, जो कि परिंदा वो पानी पर रहता था। वो परिंदा जब जाके वहां पर देखे तो एक औरत जो कुएं के पास बैठी है, उनसे इजाजत तलब करते कि हम यहाँ पर रह सकते क्या। बोले इजाजत तो दे देती मगर जमजम के ऊपर मेरा तसल्लुत रहता, बोलते मतलब मेरा कंट्रोल रहता जमजम के ऊपर। वही मतलब उनका जरिया वो बन गया सब। वहां पर लोग आके बसना शुरू कर दिए। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है, ये लोग अरब थे, मतलब अरबी जानने वाले थे, बनु जुरहम अरबी जानने वाले थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम इन्हीं लोगों से अरबी सीखे थे। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना अरबी जानने वाले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो इराक में पैदा हुए थे, इराक के रहने वाले थे। और माँ हाजरा अलैहिस्सलाम जो है मिस्र के, इजिप्ट की रहने वाली थी। आप बनु जुरहम से अरबी सीख लिए। इसके बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम एक उम्र को पहुंच गए, जो कि भाग दौड़ करने की उम्र रहती, उस दौर को पहुंच गए तो हुक्म होता कि एक मतलब जवाब पूछने पर, एक सवाल पूछने पर जवाब देने की उम्र को आ जाते। हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचते और हाजरा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हुआ है। मुसलसल ख्वाब देखते रहते, मुसलसल ख्वाब देखते रहते। आपको मतलब ये हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ने का भी ख्वाब ही में आपको बताया गया। एक छोटा उभरा हुआ टीला था। आदम अलैहिस्सलाम ही उसकी बुनियाद डाले थे असल में, मगर नूह अलैहिस्सलाम के वक्त पूरी दुनिया जब डूब गई थी तो वहां पर उसके निशान भी मिल गए थे। लेकिन अल्लाह ताला एक निशान के तौर पर एक उभरा हुआ टीला बाकी रखा था, वो टीले के पास लाके छोड़े थे। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को ज़िबा करने का भी मतलब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबरों में से थे और पैगंबर का ख्वाब ही वही रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कई बार ख्वाब में वही नाजिल होती थी। जब ख्वाब सच्चे होते हैं, पैगंबरों के ख्वाब सच्चे होते हैं। और हाजरा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हुआ है। हाजरा अलैहिस्सलाम क्या जवाब देती है, जो करना चाहे करिए, बोलते बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे। बेटे से पूछते फलम्मा जाअहुम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उमर को पहुंच गए, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उमर को पहुंच जाते तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछते, आए मेरे बेटे मैं मुसलसल
3 दिन से ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। बेटे का जवाब देखिए। या अबती इफ अन मा तुमर, 3 दिन से आपको ये हुक्म होता है तो उमर यानी कर गुजरिए, फिर क्या सोच रहे आपको। 3 दिन से ये मतलब इसका हुक्म हो रहा तो आप इस काम को कर गुजरिए। फलम्मा बलगा मा अंसिया खाला या बुनैया इन्नी अराफा फिल मनामी इन्नी अज़बहु फंजुर मा तरा। है मेरे बेटे, मैं तुम्हें ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर मा हादा तरा, देखे तुम्हें तुम्हारी क्या राय है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने औलाद को क्यों पूछ रहे। हर एक नेकी में औलाद को शामिल करना, हमें भी यही अमल करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नेक काम कर रहे हैं अपने औलाद से कराइए वो काम, वो भी बड़े होके करने में मतलब उन लोगों को मदद होती कि मेरे माँ बाप इस तरह करते थे इसलिए ये मुझे भी करना चाहिए। खैरात भी कर रहे तो आप अपने बच्चों को दीजिए। ता क़यामत तक जो भी कुर्बानियां होते इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी उसमें जो है हिस्सा रहता आगे चल के भी। इफ अल मातूमर, आया बाजान कर गुजरिए जो आपको हुक्म हुआ है। ये है जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया फबश्शिरहुम बिगुलामिन हलीम, बुर्दबारी, सबर, तहम्मुल, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआएं मांग मांग कर 100 साल उम्र मतलब आप 13 साल टीनेजर बन गए तब आपको ज़िबा करने का हुक्म हुआ। बोले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 साल की उम्र के करीब पहुंच गए। एक शख्स की तमन्ना मतलब पूरी होती रहती है। एक औलाद को देख के अपने बुढ़ापे का सहारा होता है। बच्चे देखिए अगर कुछ भी काम कर रहे तो अपने अपने को मतलब ज्यादा खुशी होती। अपने साथ भाग दौड़ कर रहे, अपने को काम आने वाले, अपने मतलब बुढ़ापे का सहारा बनने वाले। अब लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या हुआ। फलम्मा बलगा मअहु सिया, वो उस वक्त जबकि वो एक उम्र को पहुंच गए। खाला या अबती इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। खाला ऐ अब्बाजान कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म हुआ है, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। फलम्मा असलम, तो जब वो दोनों आमादा हो गए कुर्बान करने के लिए, आप भी तैयार हो गए। ये एक तरह का टेस्ट था। अल्लाह ताला को इंसानी की कुर्बानी नहीं चाहिए थी। जैसा कि सूरह हज में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुझे ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, लेकिन तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तुम कितने ज्यादा तकवा परहेजगारी वाले हो। एक तरह का इम्तिहान है कि मेरी मोहब्बत अब यहाँ पर क्या बोले तो अल्लाह की मोहब्बत के आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की मोहब्बत ज्यादा नहीं हो जाना। जिधर भी जाओ मेरी मोहब्बत आगे रहना बोल के अल्लाह ताला बेटे को ज़िबा करने का क्या छोड़ने को तो कहा, छोड़ के आ गए। अब इसके आगे कुछ भी इम्तिहान नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। देखिए हम अगर कुर्बानी कर रहे भी तो भी एक तरह से अपने दिलों में एक कैफियत लाइए। कैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंखों को पट्टी बांध कर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी दिए थे। इतना किए थे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी के बल लगाकर छुरी चलाई थी। अब अल्लाह ताला हम क्या है छोटी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार नहीं, मगर हम जिंदगी के तमाम आराइशां से मुस्तफीद होना चाहते हैं।
यहाँ पर अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा बड़ा बुलंद मर्तबा इसलिए दिया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम के तमाम जिद्द जहद अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिए, इसमें अल्लाह के दीन के लिए सर्फ कर दिए, कर गुजरे। इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब ये जुमले में जो है हाजिर अलैहिस्सलाम की तमाम तरबियत जाहिर हो रही। अगर हम उस जगह पर होते, पहले तो छोड़ के चले गए, अब आए बोले तो जबा करने के लिए आए बोलते, हमारे जैसे औरतों कोई भी रहते तो। यहाँ पर हाजिर अलैहिस्सलाम की तरबियत अपने बाप को जवाब दे रहे, इफ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ये हलीम होने का सबूत ये है। इसके बाद अल्लाह का हुक्म होता है, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। आपने सर के मतलब पेशानी के बल उन्हें लेटा दिया। फनादाहु अन या इब्राहिम, हमने उन्हें आवाज लगाई, खद सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। खद सद्दक़्ता, बेशक तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया ऐ इब्राहिम। इन्नका ज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह से मोहसिनीन को जज़ा देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही नहीं, आगे के लिए तमाम लोगों के लिए जो इस तरह के कुर्बानियां देते, हम तमाम को इसी तरह का अज्र देते हैं। हम नेकी करने वालों को इसी तरह से जज़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखें, अल्लाह ताला बोल रहा बस बस, जो इम्तिहान लेने वाला है वो बोल रहा यहाँ पर बस बस। खद सद्दक़्ता रुया या इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। बेशक इन हाज़ा लहुल बलागुल मुबीन, ये यकीनन खुला इम्तिहान था। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था इब्राहिम, जो कि तुम इसमें पास हो गए। यहाँ पर जो एग्जाम लिख रहे वो फेल नहीं हो रहे, जो एग्जाम रख रहे मुमतहिन वो बोल रहे, जिसमें जो कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि बस बस इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखा दिया। देखिए, इससे ज्यादा शाबाशी की बात क्या हो सकती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल उम्र में खतना का हुक्म होता है, तो आप अपने हाथ से खतना कर लेते। अल्लाह ताला ता क़यामत रहती दुनिया तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां याद दिहाने के लिए अल्लाह ताला बाकी रख दिया। फतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने इनका जिक्र खैर पिछले वालों के लिए बाकी रख दिया। अल्लाह ताला सूरह साफ़ात आयत नंबर 107 में फरमाना, ऐसी होती है अल्लाह ताला के खलील की कुर्बानियां। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से इस्माइल जब जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िब्बा हो जाते, अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ एक दुम्बा भेज देते। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप के बाजू खड़े रहते और दुम्बा ज़िबा हो जाता। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कामयाबी जो है पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है कि लाखों करोड़ों जानवर ज़िबा होते हैं हर साल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से अब चले गए। इस वाक़े के बाद हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मक्का पहुंचते। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर जाते तो वहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं रहते। वहां उनका माश का जरिया ये था कि वो शिकार करके खाते थे। कहाँ गए बोले तो उनके बीवी से पूछते, बहू से कि शिकार के लिए गए। आप
सवाल करते कि कैसा चल रहा है। तो उनकी बीवी जो है शिकवे शिकायतें करने पर तुल जाते। तो इस्माइल आने के बाद कहिए कि मेरा पैगाम है कि चौखट बदल देने को कहते हैं। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आते तब हाल अहवाल जो शख्स आए थे उनका हुलिया बताए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ लेते कि ये मेरे बाप थे, बल्कि समझ जाते हैं कुछ मतलब पैगाम दिए क्या बोले तो चौखट बदलने को कहे बोलता, तुम्हें तलाक देने को कहा बोलते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तलाक दे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को तलाक देते। फिर बनु जुरहम की लड़की से शादी होती उनकी। उसके बाद फिर से आते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, चौथे मर्तबा आते का मक्के को। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम तब भी घर में नहीं रहते। तब उनकी बीवी से कहते कि कैसा चल रहा हो, तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी के अल्फाज निकालते। तब पैगाम ये कहना कि इस चौखट को कायम रखने को कहो। तो इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम आते, फिर वही चौखट कायम रखने को बोले बोले तो आप बोलते तुम मेरे निकाह में रहने को कहा बोले। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5 मरतबा आते हैं। इसके बाद आप कभी भी मक्का आने का तज़किरा किसी भी मतलब हदीस या कुरान से कहीं भी साबित नहीं है। उसके बाद आप 5वें मरतबा आते के इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है तीर छीलते रहते जमजम के कुएं के पास। 5वें मरतबा जब आते, जब क्या काबे की तामीर करने के लिए आते। जब आप और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर काबे की तामीर करना शुरू करते, तब इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाते जिस पर ठहर के आप तामीर करते, ऊंचाई पे जाते थे, फिर ईंट रखते थे, फिर नीचे आता था। इस तरह खड़ने से उनके पैर के निशान बन गए। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा, सूरह बकरा आयत नंबर 125 में, वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ बोल के अल्लाह ताला जो भी हज और उम्रे को आए उस जगह को नमाज पढ़ते, 2 रकात नमाज पढ़ते वहां पर। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है संगे अस्वद लेके आते, जो कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही वो जमीन पर आ गया था जन्नत से। लेकिन लोगों की जो गुनाहों की वजह से संगे अबियत था, वो सफेद था, लेकिन गुनाहों की वजह से अबियत यानी काला हो गया वो पत्थर। अब जिस जगह पर है उसी जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको वहां पर रख देते हैं। उसके बाद जब तामीर हो जाती, खदो खामत जो कुछ देना था दे देते। उसके बाद दुआ करते तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमारी इस इबादत को, जो भी हम मजदूरी करें, जो भी तामीर करें, उसको तू कबूल कर ले। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5 बार सफर करे फलस्तीन से मक्के को। ये मामूली बात नहीं था। ऊंट पे बैठ के रेगिस्तान, बेआब हो गया वादी और फलस्तीन, या मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वसाइल कुछ भी नहीं थे उस ऐसा आप इसके बाद आप फलस्तीन चले गए, अल खलील जो हिब्रान कहते हैं वहां पर चले गए, और वहीं आपका इंतकाल भी हो गया। वहीं पर आपकी खबर भी है। हाँ, एक तज़किरा मिलता है बुखारी शरीफ की एक रिवायत से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन ये अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, मेरे वालिद की वजह से मुझे उस दिन या अल्लाह रुस्वा ना कर बोलते। अल्लाह ताला एक उनके वालिद को एक सिया चेहरा दे देते, मतलब काला चेहरा दे देता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते हैं ना, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि इब्राहिम तुम अपने कदमों में देखो बोलते, काला बिच्छू की शक्ल में हो जाता उनके बाप जो है। ये यहाँ पर बिच्छू की शक्ल में देना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक तरह से तकलीफ कम करने की एक हिकमत थी। एक शक्ल कम मतलब बदल जाने की वजह से इंसान को तकलीफ में होता है, मतलब इजाफे की जगह कम हो जाती है थोड़ी बहुत तकलीफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कम होने के लिए वो बिच्छू की शक्ल उनके बाप को दे दिया जाता।
آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اتنی دیر سے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ ہمیں کون سے اسباق مطلب سبق لیسن، جب کہ خود والد مشرک تھے، حاجرہ علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکل گئے، باپ مشرک تھے، لیکن آپ کی دعوت کا طریقہ ہمیں بھی وہی دعوت کا طریقہ اپنانا چاہیے اپنے زندگیوں میں بھی۔ توحید عقیدہ جو تھا، آپ اپنے قربانی دے کر وہاں سے اپنے وطن چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، کثرت سے آپ کا جد و جہد تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ جیسا حکم دیتا آپ من و ان اس کی اتباع کرتے تھے۔ اسی لیے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اس آیت کا مضمون جو ہے اصل میں یہ ہے اپنی زندگی ہر چیز سے دستبردار ہو جانا، ہمیں جو بھی مطلب ہم اگر پکڑ کے بیٹھے بولتے اللہ تعالیٰ برابر اسی سے آزماتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر انہیں واپس لوٹا دیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں، یہ استقامت ہی انسان کے لیے اصل میں قیامت ہے۔ استقامت پر رہنا، دین پر مکمل رہنا، یہ اصل میں انسان کے لیے آزمائش ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کبھی آزمائے اللہ تو شکوے شکایتوں کے بجائے صبر، جیسا حاجرہ علیہ السلام، سارا علیہ السلام، سارا علیہ السلام نے بھی بہت ساری قربانیاں دی تھی، آپ کے ساتھ ہجرت کر کے صبر کی۔ آپ کے اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کئی پیغمبروں کو بھیجا۔ والد کا مقام اللہ تعالیٰ مطلب رسول کے باپ ہو کر بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر انسان خود سے کچھ بھی نہ کرے تو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جیسا بیٹا رہنے پر بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک انسان خود ہدایت یافتہ نہ ہو جائے۔ آپ ابو الانبیاء اس لیے کہے گئے کہ آپ کا مرتبہ بھی آزمائش بھی اتنی ہی تھی۔ انبیاؤں کو انسانوں کے دو انسانوں کے ایک مطلب انبیاؤں کو بخار بھی آئی تو دو انسانوں کو جتنی بخار آتی اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے جتنا زیادہ مقام اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بھی انہیں ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام باپ کا گھر چھوڑا، وطن عزیز، شہر چھوڑا، ملک چھوڑا، ملک عزیز چھوڑا۔ انسان کو محبت ہوتی ہے ملک سے جہاں پر وہ رہتا، دوسری بیوی اولاد اور لے جا کر وہاں چھوڑ دیا، بیواد غیر عزیز جہاں پر کچھ نہ ہوتا، قربانیاں ہی قربانیاں، حکم ہوتا گیا، آپ اتباع کرتے چلے گئے۔ آپ سے ہی ختنہ بھی مطلب ختنہ کا حکم بھی آپ سے ہی شروع ہوا تھا۔ اسی واقعے سے ہاں دنیا کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم جیسی نعمت دی تھی۔ اب دیکھیں قربانی تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی ایک عبادت تو وسیع کر دی، لیکن زمزم اگر حج ہونا ہے تو وہاں پر جا کر کرنا ہے، کیونکہ اپنے محبوب خلیل کو یاد کرتے ہوئے، ان کی بیوی کے قربانیاں یاد کرتے ہوئے، جو دعائیں مانگ مانگ کر آپ کو اولاد ہوئی تھی، وہاں پر قربان ایک طرح کی کیفیت مطلب بکرا قربان کر رہے ہیں آپ تو بکرا تو قربان ہو جاتا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کس طرح قربان کر رہے تھے، وہ تصور میں لانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری۔ انسان کو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، کافروں سے بچاتا ہے، منہ توڑ جواب دے گا مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم نے انہیں کو ناکام کر دیا ہوگا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے آگ بھڑکائے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کو ناکام کر دیا۔
بتوں کو توڑنے کا واقعہ رہنے دو، بادشاہ کے آگے مناظرہ کا واقعہ رہنے دو، آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، ان تمام سے نکل کر آپ اللہ کی یکسو ہو کر آپ کی بندگی کے لیے چلے گئے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی ناشکریاں، ریگستان وہاں پر لے کے چھوڑ دیے اولاد کو، یہ سب مطلب اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو خلیل نہیں بنایا، مسلسل سفر کرتے رہے، مسلسل اللہ کے دین کے لیے اپنا جو کچھ ہے بچھا دیا۔ اصل میں انسان کو ان مادی خلاف جو کہ مادیات مطلب جسمانی غلافوں سے لپیٹ میں سے نکل کر اصل حق کو پہچان لینا، جو کہ کائنات میں گمراہ نہیں ہو گئے، جیسا اصل حق کو پہچاننا، اصل ہستی کو ماورا ہو کے اس سے بلند تر ہو کے ہمیں جو ہستی پیدا کیا ہے اس اللہ کو پہچاننا اصل حقیقت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز جو ہے اللہ سے عشق، محبت، جو دل سے محبت، مطلب جو دل سے یہ مان لے من رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ مان لے وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا، بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ لذت پاتے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت کی وجہ سے کچھ بھی آپ چھوڑ دیے بولے تو آپ آزما کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مرکز بنا دیا، سب کے دلوں کے عزیز تر جگہ بنا دیا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا آپ کی قربانیاں۔ جب وہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ منظر یہاں تک آنے والا تھا، بلکہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ کے محبت سے قریب ہونے کی، اللہم انی اسألک حبک من احبک وحب عملک یقرب الیک الحب، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ان تمام لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان عمل کا سوال کرتا ہوں جو کہ تیری محبت کے قریب کر دے۔ ہمیں یہ دعا بھی اپنے نمازوں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اصل میں یہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، ہمارے بھی قل کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی یعنی ہمارے بکرے کی قربانی نہیں ہوتا، اس طرح زندگی میں جو بھی قربانیاں اللہ کے آگے پیش کرنا ہے، اب صبح فجر کی نماز وہ بھی قربانی ہے، وہ بھی قربانی، جو انسان اپنی نیند کو قربان کرتا، ہر چیز، اگر آپ گھر چھوڑنا پڑا، آپ کے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، انسان کو اس سے بڑی کیا آزمائشیں آ سکتی ہے، جتنا ابراہیم علیہ السلام انسان اپنے جسم کے ٹکڑے کو اللہ کے، انسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تکلیف ہو تو بھی برداشت کر سکتا، لیکن اولاد کی تکلیف انسان سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ میری محبت آگے رہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کی طرف ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی قربانی اولاد کو قربان کر دینا۔ اس کے بعد تھوڑا جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ ان 2-4 باتوں سے انشاءاللہ میرا درس مکمل کر دوں گی۔ جو بھی پہلے یہ کرنا مطلب مخصوص ہے ان ایام میں کہ پہلی ذی الحج سے لے کر آخری ذی الحج 13 تاریخ تک تکبیر پڑھتے رہیے، کہ اس طرح سے ہم مطلب حاجیوں کے عبادت میں بھی شامل ہونے والے رہتے ہیں، ان لوگوں کے جو مطلب ان کا جذبے میں بھی ہم شامل ہونے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے، جو کہ تکبیر مطلق ہے، تکبیر مقید یعنی قید، ایک عمل کے طور پہ وہ قید ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مقید کہتے ہیں۔
فرض نماز کے بعد جو تکبیر کہتے ہیں اس کو مقید کہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنے والوں کو متعلق بولتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح ہم حاجیوں کے عبادت میں بھی شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ان دنوں میں سوائے قربانی کے کچھ بھی صدقہ خیرات اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ جو بھی صدقہ خیرات ہے باقی کے مہینوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک مطلب اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں خون بہانے کے علاوہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کے بجائے شادیوں میں جو بولتے ہیں صدقہ خیرات کرو، لیکن وہ جائز ہے۔ افضل کام کیا ہے؟ اللہ کے قربانی دیجیے۔ قربانی استطاعت ہے والے دینا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی آپ نے 100 اونٹ قربانی کرے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربانی کرے تھے۔ ہر کوئی دے سکتے قربانی۔ یہ اصل میں محبتوں کی نشانی ہے، ایک گفٹ، ایک اس لیے کوشش دینے کے لیے نہیں ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کے کامیابی کا جشن میں ہم بھی شامل ہونے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام کو میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دیر میرے ساتھ بنے رہے۔ جو بھی سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے والے کو سننے سے زیادہ، بولنے والے کو بولنے سے زیادہ، جو بھی سبق اس سے ہم حاصل کریں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔